पहले हम टीयर 1 का सिलेबस जानेंगे, जिसमें पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें टॉपिक्स है जो इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दिस component may include questions on analogies, similarities, differences, space visualization, spatial orientation, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship, concept, arithmetic, reasoning, figural classification, arithmetic, number series, non-verbal series, coding and decoding, statement, conclusion, syllogistic reasoning, etc. Are the topics are semantic analogy, symbolic question analogy, figure analogy, semantic classification, symbolic number classification, figural classification, semantic series, number series, figural series, problem solving, word building, coding and decoding, numerical operations, symbolic operations, space orientation, space visualization, Venn diagrams, drawing inferences, punched hole, pattern folding, unfolding, figural pattern folding, and comprehension in indexing, address matching, date and city matching, classification of center, codes, roll numbers, small, capital, letters, number, coding, decoding, classification, embedded figures, critical thinking, emotional intelligence एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो ये रहा टीयर 1 का रीजनिंग का सिलेबस। इसमें आपको बस इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ही करने हैं, पूरा नहीं करना। हमें सिलेबस सिर्फ जो एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उससे ही लिखना चाहिए, क्योंकि एसएससी इन्हीं में से क्वेश्चन देती है, ना कि अगर हम अदर साइड पे जाए वहाँ भी सही रहता है, लेकिन हमें ज़्यादातर यहीं से जो एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वहीं से सिलेबस कवर करना होता है। तो जनरल अवेयरनेस में हमारे पास क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. Question will also be designed to test knowledge of current events and such of matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of any educated person. यानी कि जो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस पूछने का मोटिव ये है कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको अपने आसपास की नॉलेज होनी चाहिए, और जो करंट इवेंट्स उसके आसपास हो रहे हैं उनकी सारी नॉलेज होनी चाहिए। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री स्पेशली पर्टेनिंग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च। यानी कि क्वेश्चन आएंगे इंडिया, नेबरिंग कंट्री, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, कल्चर, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। तो मैथ्स में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, percentage, ratio and proportion, square roots, averages, interest, profit loss, discount, partnership, business, mixture and allegation, time and distance, time and work, basic algebraic identities of school algebra and elementary surds, graphic of linear equation, triangle and its various kind of centers, congruence and similarity of triangle, circle and its chords, tangent angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more, right circle, triangle, quadrilaterals, regular polygon, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular parallelepiped, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian measures, standards, identities, complementary angles, heights and distance, histograms, frequency, polygon, bar diagram and pie chart। अब है इंग्लिश का सिलेबस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसएससी सीजीएल में। तो इसमें हम देखेंगे जो इंग्लिश पूछी जाती है वो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश इज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि ये इंग्लिश इसलिए पूछी जाती है ताकि जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उसकी इंग्लिश का टेस्ट लिया जा सके, उसकी राइटिंग एबिलिटी और बेसिक कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट लिया जा सके।
The question in parts A, B, C, D will be of a level commensurate with the essential qualification graduation, and question in part C will be the 10th level. आपने जो 10th 12th 11th ग्रेजुएशन में पढ़ा है उनसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब है CGL का Tier 2 का सिलेबस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है नंबर सिस्टम, बी है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, सी है अलजेब्रा और डी है ज्योमेट्री। फिर है मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये मेजर टॉपिक दिए गए, इसमें से आपको ये पूरा यहाँ से जो सब टॉपिक्स है उन पे ज़्यादा फोकस करना है और Tier 2 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि यही आपकी मेरिट लिस्ट बनाती है। फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन। दीज विल इंक्लूड्स क्वेश्चन ऑन सिमेंटिक एनालॉजी, symbolic operation, symbolic number analogy, transfigural analogy, space orientation, semantic classification, Venn diagram, symbolic number classification, drawing inferences, figural classification, punched hole pattern, unfolding, folding, semantic series, figural pattern, folding and completion, number series, embedded figures, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड अदर सब टॉपिक्स। अब है इंग्लिश, इसमें इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है। तो आपको पहला है वोकैबलरी, यानी कि जो भी वोकैबलरी आपको करनी है। ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेस, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, idioms, phrases, one-word substitution, improvement of sentence, active passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehension passage. To test comprehension, 3 or more paragraphs will be given and question based on those will be asked, यानी कि पैराग्राफ क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-3, तो उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एटलीस्ट वन पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल वन बेस्ड ऑन अ बुक और अ स्टोरी, यानी कि जो एक पैराग्राफ होगा वो किसी स्टोरी पे बुक से दिया गया होगा, लेकिन अदर 2 पैराग्राफ शुड बी करंट अफेयर बेस्ड ऑन रिपोर्ट और एन एडिटोरियल, यानी कि जो 2 अदर पैराग्राफ होंगे वो किसी करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगा या किसी रिपोर्ट और एडिटोरियल से लिया गया होगा। तो अब है जनरल अवेयरनेस से सिलेबस, इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन आर डिज़ाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल। ये जो मैंने अभी Tier 1 में बताया तो सेम है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इंडिया के बारे में, नेबर और वर्ल्ड के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। अब है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बेसिक्स पूछा जाएगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर, कीवर्ड शॉर्टकट्स। फिर है सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी इसकी आपको MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह की आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर है वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, यानी वेब ब्राउजिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, डाउनलोडिंग अपलोडिंग आपको आनी चाहिए, ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग आपको आनी चाहिए। फिर है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, उसमें है नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस और वर्म्स एंड प्रिवेंटिव मेजर, यानी आपको इतना थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। कंप्यूटर के ओनली 20 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मार्क्स के होते हैं और इसमें 15 से 20 मिनट आपको दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे या कुछ और वीडियो पे हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे।